Good morning, students. Now, today's this is my third session in the chapter metal and non-metal, and we have already studied about the physical properties of metal and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, and we have already seen the chemical reactions. How does metal react with water, air, acid? So now today's session main objectives are we will learn about the most important topic which is also concerned with the first chapter for displacement reaction. So we are going to study about the reactivity series. Again we will revise the topic displacement reaction, and then we will see the reaction between metal and non-metal. It means how the ionic bonds are formed. So these are the three main important objectives for the today's session. So starting from the first objective, that is the reactivity series. So my dear students, what is reactivity series? This is the important question arises in our mind. Reactivity means how the element reacts. Suppose a metal is dipped into the solution of another metal, then whether the metal which is dipped is able to displace the other metal from its solution. कहीं ना कहीं बच्चों, अगर एक मेटल की रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसके केमिकल रिएक्शन की बात होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, दूसरे मेटल के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है. आपने इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव सीन दैट some metals react with cold water, for example sodium and potassium. Some metal reacts with hot water, magnesium, you have seen that. And some metals react with steam, iron, aluminium. So what does it mean? It means that for reaction with water molecule, different conditions are required, different amount of heat energy is to be supplied. It means the reactivity is different. On the same basis, the series we have prepared a series, and the series is in order of decreasing activities. So when the metals are arranged in order of their decreasing activities, it is called reactivity series. तो आप लोगों ने जो वाटर के केस में बच्चों पढ़ा है, उसी के बेसिस पर जो रिएक्शन एसिड के साथ होता है मेटल ऑन मेटल का, उसके बेसिस पर मेटल्स को एक अरेंजमेंट दिया गया है, और उस अरेंजमेंट में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इट इज़ केप्ट ऑन द टॉप. फिर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज मीन्स हियर रिएक्टिविटी, उसको अरेंजमेंट दी गई, एंड दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. सो नाउ सी द रिएक्टिविटी सीरीज. हमारे पास जो एज पर एनसीईआरटी बुक जो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखिए बच्चों, इस रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए. इसको याद रखने का एक मेथड अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे याद रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. वेरियस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस reactivity series is not only important in this chapter, but it is also important for the first chapter where you have studied about the displacement and double displacement reaction. Is it clear? सबको समझ में आ रहा है ना? तो my dear students, see here at the top potassium is there. Potassium highly reactive, most reactive. Now in order of decreasing order, हाइड्रोजन को देख लो बच्चों, बिग ब्रैकेट में रखा गया है. हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट्स है, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव. इट मीन्स all those metals which are above hydrogen in this series can displace hydrogen from acid. वहाँ से एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, सॉल्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है. अब इस सीरीज का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बच्चों पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे. तो एक बार मैं इस सीरीज़ के एलिमेंट्स का आप सीक्वेंस देख लो. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों. अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे आप याद रखोगे, उसको रिमेंबर करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ. देखो, प्लीज सेंड लायंस, cats, monkeys and zebras. These are the name of animals. Please
आपका P ले लो, P फॉर पोटेशियम, sand, S for sodium, lion, lithium is included here but it is not given in activity series of your NCERT book. Calcium, C for calcium, magnesium का M for monkeys, A for aluminium and Z for zinc, zebra, I for iron into. So please send lions, cats, monkeys and zebras into lovely hot countries. L for lead, H for hydrogen, C for copper. Signed General Penguin. S for silver, G for gold, P for penguin. It means if you are remembering the sentence, please send now the name of animals lion, cats, monkeys and zebras into lovely hot countries, signed General Penguin. तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा. प्लीज का पी पोटेशियम, एस सोडियम, एल लायंस का लिथियम, सी फॉर कैल्शियम, मंकीज का मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम एंड का जेब्रा का जेड जिंक, इनटू का आई आयरन, लवली का एल लीड, हॉट कैच हाइड्रोजन, कंट्री का सी कॉपर, एस साइंड का एस सिल्वर, जी का जनरल गोल्ड और सबसे लास्ट में प्लैटिनम. इज इट क्लियर? यहाँ पर दो नए आपको एलिमेंट इंक्लूडेड हो गए, प्लैटिनम एंड लिथियम विच आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. इज इट क्लियर? सबको यहाँ तक समझ में आ गया कैसे इस सीक्वेंस को याद रखना है? ओके, नो आई मूव फर्दर. ओके, so now there is a reaction activity discussion. It is also given in your NCERT book. So now there are 4 different metals A, B and C were taken and added to the following solution one by one. Now table is here. Now these are the 4 metals A, B, C, D, and now these 4 metals which are taken added to the solution. First these 4 metals are added to the iron sulfate solution. Here it is iron sulfate solution. Now you see what happens when A is added to the iron sulfate, there is no reaction. When B is added to the iron sulfate, it displaces iron sulfate. It means B is more reactive than iron sulfate. B is more reactive than iron, not but iron sulfate, but it is more reactive than iron. Now C and D does not displaces the iron from its sulfate solution. It means what? It means बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि B की जो रिएक्टिविटी है A, C और D से ज़्यादा है, क्योंकि B के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बाकी A, C, D कोई कर ही नहीं पा रहा है. पहला सॉल्यूशन हो गया. नाउ these 3 are dipped in, these 4 metals are dipped in copper sulfate solution. अब कॉपर सल्फेट को देखो आप, तो A डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि B की पहले ही चर्चा हो चुकी है बच्चों कि B के पास क्या कैपेबिलिटी है कि B जो है वो डिस्प्लेस कर चुका है आयरन को, और B मोर रिएक्टिव है A से. इसका मतलब है B कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस करेगा, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रख दिया गया, क्योंकि B इज मोर रिएक्टिव देन A और C D रिएक्टिव नहीं इसको भी डिस्प्लेस नहीं करते. इसका मतलब है कि B के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो रिएक्टिविटी में ज़्यादा है वो है A. B इज मोर रिएक्टिव देन A, C and D, but now B is more reactive than A and A is more reactive than C and D. अब थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिंक सल्फेट. अब जिंक सल्फेट में आप देखो क्या होता है. जिंक सल्फेट में B जो है वो जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन करता है, C के साथ नो रिएक्शन करता है, D के साथ नो रिएक्शन करता है. अब इसका मतलब है A जो है वो डिस्प्लेस कर तो अब यहाँ देखो बच्चों, B जो है वो जिंक सल्फेट के साथ नहीं रिएक्ट करता, ना C और D के साथ रिएक्शन होता है. तो अब अपने को देखना है कि B जब नहीं रिएक्शन करता तो इट मीन्स कि B में भी जो जिंक, वो जिंक हो सकता है, सेम एलिमेंट हो सकता है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. तो अब नेक्स्ट हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट. यहाँ पर क्या देखते हैं कि C जो है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, D रिएक्शन नहीं करता है. यानी कि अब हमें पता चल गया इसके साथ ही कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है. यहाँ पर जो रिएक्टिविटी बच्चों है वो किसकी ज़्यादा होगी? B की सबसे ज़्यादा है, देन A, देन C एंड देन D. तो नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आस्क्ड
दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस टेबुलर फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में आते हैं, सो यू शुड गेट रेडी फॉर द आंसरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज का आपको हमने याद रखने का तरीका बता दिया है। तो यूज द टेबल एबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वेश्चंस? Which is the most reactive metal? Obviously, no doubt, B is the most reactive metal. What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? Solution, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप बच्चों B डालोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली B जब आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है और A से ज़्यादा रिएक्टिव है और A कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब है कि if B is added to a solution of copper sulfate, displacement reaction will take place. एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, आप जानते हो कि कलर कैसा होता है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है, इट विल फेडेड। ओके, इज इट क्लियर? वो धीरे धीरे फेड होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? बी। बी के बाद कौन है? ए, देन सी एंड देन डी। तो इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? नाउ वी शुड मूव फर्दर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ओके, तो आपको समझ में आ गया रिएक्टिविटी सीरीज का कैसे हमें कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दी हुई है, साइड में देख लो। इसके अकॉर्डिंग आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। और कैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे आपको हमने वो ट्रिक बता दिया है। सो नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अभी हमने पूछा उसके आंसर्स यहाँ पे है, हमने लिख दिया है, सो दैट यू कैन सी V इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इफ V is added to a solution of copper sulfate, displacement reaction will take place, and the decreasing order of reactivity is B is greater than A is greater than C, and C is greater than D. Okay. Now there is another question related to the same pattern. उसी बच्चों उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। Now metallic oxide of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. अब देखो, मेटेलिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं किसके साथ? जिंक के साथ। अब बताओ क्या होगा? जिंक और जिंक ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन होने की चांसेस है यहाँ पे? नो रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले केस में क्या होगा बच्चों? नो रिएक्शन। अच्छा, मैग्नीशियम आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में पहले साइड में दिखा देता हूँ। नाउ मैग्नीशियम और जिंक में जरा कंपेयर करो। मैग्नीशियम इज हियर, जिंक इज हियर, इट मीन्स मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नाउ द कॉपर एंड जिंक, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? नो reaction. Clear? Now for zinc and magnesium again, zinc and magnesium, zinc is less reactive than magnesium, so in this case again no reaction. Magnesium and magnesium, since both the elements are same, so there is no possibility of reaction. Now copper magnesium, copper is less reactive than magnesium, so no reaction. In the second case there will be no reaction. Is it clear? Now zinc and copper, zinc is more reactive than copper, so here what will happen? Displacement take place. Now magnesium is more reactive, यहाँ भी displacement होगा। Now copper and copper again, so there is no reaction, no R for reaction. तो इस तरीके से बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आप आसानी से बता सकते हो whether the displacement reaction will take place or not. Displacement reaction means when a metal will displaces another metal from its solution if the first metal which was added to the solution of another metal is more reactive than that one. अगर कोई मेटल दूसरे सॉल्यूशन में डालो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी चांसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन दिस पैटर्न। अरे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो योर आंसर इज हियर। जो हमने अभी आपको लिख के बताया वो टेबुलर फॉर्म में हमने कर दिया है। सो नाउ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जो फिर से एक बार पैटर्न हमने बताया था उसको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए देख लो। Please send lions, cat, monkeys and zebras into lovely hot countries
साइंड जनरल पेंगुइन। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो हमारा ये जो शुरू के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, that was completed, that is reactivity series and the displacement reaction on that basis. So moving to the next topic, are you ready guys? So note down each and every point which are important, which are discussed here, you should note down in your notebook also. So now we are moving to the next topic, and there is also a very important one question is asked from this topic. How do metals and non metals react together? बच्चों मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था, कमिंग टू द टॉपिक एलिमेंट, इसको हमने क्लासिफाई किया था मेटल, नॉन मेटल। मेटल में क्या कहा था हमने? लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल में क्या कहा था? गेन इलेक्ट्रॉन। नाउ विच एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 2 3, तो वो लूज करेगा। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 6 7, वो गेन करेगा। देन देयर इज द पॉसिबिलिटी अबाउट 4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग। एंड फॉर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, इट इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी। जब एलिमेंट के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इफ देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, जो इनर्ट गैसेज आपके हैं। तो व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट्स? इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स सो वुड वांट टू गेट द स्टेबिलिटी कंडीशंस। उसके एटम्स जो होंगे वो चाहेंगे कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर कोई चाहेगा, चाहे वो डोनेट करके हो, चाहे वो गेन करके हो। आगे बात समझ में? तो मान लो जैसे सोडियम है, सपोज द केस ऑफ सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देर आर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देर आर 17, एटॉमिक नंबर इज 17, 287 ऑन द बेसिस ऑफ KLM कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, यहाँ 1 है। What do you observe here? You see that if sodium can lose 1 electron, it will lose 1 electron, then it is called metal. Chlorine can gain 1 electron, it is called non-metal. एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Na+ के कंडीशन में आ जाएगा। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Cl-, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, सोडियम 11, नाउ इट बिकम सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 281. नाउ इन केस ऑफ आयन इट इज 28, only 28 configuration. Is it clear? Chlorine atom gains 1 electron, becomes chloride ion. It is 287 and now it is 288. So these two oppositely charged ions are attracted towards each other, and there is the force of attraction between these two ions. एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है जिसको हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। एक निगेटिवली चार्ज आयन है जिसको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। इज इट क्लियर? देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, दीज टू डिफरेंट चार्जेस, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग। और ये चूंकि आयंस है तो इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। सो हाउ डू मेटल रिएक्ट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेंडेंसी है मेटल्स या एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को ही हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं, देयर टेंडेंसी टू अटेंड अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। वो चाहते हैं कि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे डिफरेंट
एटम्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ देख सकते हो। दीज आर द मेटल्स, सब में देखो 1 2 3 1 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 6 7 5 6 7 7, जो अभी आपको हमने समझाया। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज एनी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप यू कैन आस्क टू मी, you can comment to the my blog section also, and I will see your comment, then I will reply to you. Okay, so now अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्यों होती है? बिकॉज दे वांट टू गेट द अटेंड द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, और ऐसा करने के दौरान उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दे बिकम्स आयंस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, दिस एटम्स बिकम्स एनायन। ओके, so now you can see here sodium 281, sodium ion 28, just like in chlorine it becomes 287 288। अब दोनों जो अपोजिटली चार्ज आयन है, कैसे इनके बीच में, देखो यहाँ पर बच्चों, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन। नाउ जस्ट सी व्हाट इज सोन हियर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसको थोड़ा सा आप बच्चों समझ लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय डॉट्स। जैसे मान लो सोडियम है, हमने किया 281, जस्ट सोडियम सिंबल इज रिटन हियर एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। Now for chlorine it is 287, there are 7 electrons. So now chlorine, these 7 electrons are denoted by 7 dot 2 2 4 2 6 और 1 7। Is it clear? अब चूंकि बच्चों यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला आता है क्लोरीन के पास, तो ये सोडियम आयन बन जाता है, और ये क्लोराइड, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये क्लोराइड आयन बन जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन को दिखाना, यानी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के रूप में दिखाना है। एंड सम टाइम वी आल्सो यूज द अनदर सिंबल, दैट इज द क्रॉस। हम क्रॉस का यूज कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, सो इट इज शोन बाय क्रॉस लाइक दिस। इज इट क्लियर? 2 2 4 2 6, दीज आर द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। So now here the formation of, now what is happening here, sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and held by strong electrostatic force of attraction. There is a strong electrostatic force of attraction between these two ions and it exists as a sodium chloride. अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि क्या सोडियम क्लोराइड में, ये सोडियम क्लोराइड क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, in sodium chloride it exists as a aggregates of oppositely charged ions. It does not exist as a molecule but oppositely charged ion का एग्रीगेट है। बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन का आयन एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे आयंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। एट द एंड आई विल गिव सम क्वेश्चंस टू यू आल्सो। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन व्हाट विल यू डू फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 282। 2 इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लूज कर दिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लूज किया, उसको आपने यहाँ पर दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आ गया। नाउ फॉर क्लोरीन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इट कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और आपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा है? 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम ले लो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और बनेगा कितने क्लोराइड आयंस? 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे। ठीक है ना? इस चीज़ को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में बच्चों कैसे दिखाओगे? लाइक दिस, मैग्नीशियम
2 डॉट से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, क्लियर। क्लोराइड के 7 दिखा रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया क्लोरीन के एटम के पास, एक इसके पास चला गया, इज इट क्लियर। तो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड के चूंकि 2 डिफरेंट एटम्स है Cl2, ये आपस में अट्रैक्टेड होंगे विद द फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, एंड यू शुड अंडरस्टूड इट कैसे ये होता है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, कांट एक्सप्लेन इट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं आपको एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अनदर एग्जांपल और ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कैसे करोगे बच्चों, इसको समझो। नाउ लुक एट हियर, सबसे पहले जो मेटल है एल्यूमिनियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 283। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो नाउ व्हाट विल हैपन, Al3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये 28 बन जाएगा। नाउ इट हैज़ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ डोनेटेड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का अगर आप बच्चों ड्रॉ करो तो 2 6, एक ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये बना लेगा 2 नेगेटिव आयन 2 8। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, देयर इज ऑड सेक्शन, आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एल्यूमिनियम के हम 2 एटम ले लें, सपोज करो यहाँ पे 2 एटम ले लिया जाए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरे रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के 2 एटम हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के 2 आयंस हो जाएंगे, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और इन पूरे में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ऑक्सीजन का एटम हो जाएंगे, दे विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 ऑक्साइड आयंस बन जाएंगे। तब आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला Al2O3, वैलेंसी पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ा था, हमने एक सेक्शन लिया था इसके ऊपर, Al3 ऑक्सीजन का 2 फिर सब स्क्रिप्ट में Al2O3 आता है। इज इट क्लियर कैसे बनता है, इसको आप डॉट स्ट्रक्चर के रूप में दिखा दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके, नाउ अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है उसका फिजिकल नेचर। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड आपने टच किया, कैसा होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, थोड़ा बहुत ब्रिटल होता है, उसको अगर फोर्स एक्सर्ट करोगे इट इज जस्ट ब्रिटल इन नेचर। क्यों हार्ड होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सेकेंड प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग एंड रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप जरा सोचो कि अगर आयनिक कंपाउंड्स को फीड करते हो, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इट मींस देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। उस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द रीजन वाई, ड्यू टू द large amount of energy required. And why the large amount of energy is required, due to inter-ionic interaction. Electrostatic force of attraction is very important. तो बच्चों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पर, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है आपसे कि वाई, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से बच्चों बनते हैं। पहला बनता है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड टेक प्लेस, वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। जहाँ आप दिखाओगे कि साइड मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, नॉन मेटल्स कितने एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप उसको दिखाओगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाई फिजिकल नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। जो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात अभी आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सबके पीछे कॉमन पॉइंट रीजन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाई गई है बच्चों, कुछ कंपाउंड्स के NaCl, LiCl, कैल्शियम क्लोराइड 1000 केल्विन, 1074 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन। NaCl की है, बहुत हाई हो गया। ओके, सो नाउ सॉल्युबिलिटी की बात कर ले कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो कहाँ सॉल्युबल होगा, वेदर इट विल सॉल्युबल इन वाटर और अनदर सॉल्वेंट और नॉट। माय डियर स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और केरोसिन और पेट्रोल। जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपको बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, एसीटोन होता है, इन सब में कम सॉल्युबल होता है बिकॉज
दो सॉल्वेंट्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, वहाँ जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, जबकि हमारा आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्डेड है। वाटर में के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन एक डेवलप होता है और ईजिली दे आर सॉल्युबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 अलग अलग केस की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं बच्चों, जरा सा आप देखो इसको समझने के लिए। जो सॉलिड स्टेट होता है उस स्टेट में कुछ ऐसी होती है व्यवस्था। यू कैन सी हियर इन सॉलिड स्टेट व्हाट आर यू ऑब्जॉर्विंग, आप क्या ऑब्जॉर्व कर रहे हो। नाउ द आयंस आर एग्रीगेटेड टुगेदर एंड आयंस आर फिक्स्ड इन लेटिस पॉइंट एंड कैन नॉट मूव, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इनसाइड द सॉल्यूशन द conduction of electricity is due to the movement of charged particles, due to the movement of ions। अब solid state में तो बिल्कुल closely packed है, movement है ही नहीं। बट इन केस ऑफ मॉल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड स्टेट में था वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, यहाँ गैप क्रिएट हो जाता है, देयर इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ मूवमेंट, जहाँ जहाँ मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। सो आयंस कैन नाउ मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मेन पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करेंगे, देखो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जितने भी निगेटिव चार्ज जो ब्लू कलर से डिनोटेड है वो किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। देयर आर 3 केसेस। पहला केस राइज होता है थ्रू सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है। केस नंबर 2 वो है आपको सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं कर सकता। एंड द केस नंबर 3 दैट इज द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड स्टेट NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर डियर माय चिल्ड्रन? समझ में आ गया ना क्यों ऐसा पॉसिबल है, ये आपको मैंने अभी दिखा दिया। ओके, अब जरा से यहाँ देख लो 3 डिफरेंट सिचुएशन। हमने डिस्टिल वाटर, अगर प्योर वाटर लेते हो तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, यू कैन सी बल्ब विल नॉट ग्लो। अगर आपने कोई सॉलिड लिया, ये सॉलिड कंप्लीटली सॉलिड सब्सटेंस अगर ले रखा है वहाँ भी बल्ब ग्लो नहीं करता, तो सॉलिड में क्या ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, दे कांट मूव। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट व्हाट हैपेंस, देयर इज द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस का मूवमेंट देख लो, बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये होती है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अप टू नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, displacement reaction on the basis of reactivity series and how the metals and non-metals react together, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग कैसे होती है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो एट द एंड these are the questions which you have to solve. What are those questions? Write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. So the formation of Na2 and MgO by the transfer of electrons, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the ions present in these compounds? इसमें जो आप जो ऊपर के क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू फॉर्मेशन देखा होगा, उसमें आयंस के बारे में बताना है कि कौन कौन से आयन उस कंपाउंड्स में होंगे। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इन विच स्टेट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आप आसानी से बता सकते हो। ओके, so these are the questions on the basis of the today discussion, my dear students, and I hope you have understood all the topics. So this was my third lecture in this chapter. First about the physical property, second about the chemical property, and third about the formation of ionic bond and reactivity series. So now we will move for the next 2 more sessions will be there. First will be regarding the metallurgy, and at the end we will discuss about the extraction of metals from its ore. In this way, in 5 or 6 session this chapter can be completed. Okay, so now thanks for watching. Like and subscribe. Log into blog. This is my blog www.icc